नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। सीज फायर के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। तीसरे देश अमेरिका के दखल से विपक्ष नाराज है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। यूएस की मध्यस्थता पर विपक्ष के सरकार से सवाल। पाकिस्तान पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। कई घंटों से इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर तनाव की स्थिति नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर हालात फिलहाल सामान्य। सीज फायर के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। तीसरे देश अमेरिका के दखल से नाराज विपक्ष। यूएस की मध्यस्थता और विपक्ष के सरकार से सवाल। पाकिस्तान पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। कई घंटों से इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव की स्थिति नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर हालात फिलहाल सामान्य। सीज फायर के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और ऐसे में तीसरे देश अमेरिका के दखल से विपक्ष नाराज है। यूएस की मध्यस्थता पर विपक्ष के सरकार से सवाल। पाकिस्तान पर पूर्णतः भरोसा नहीं किया जा सकता। कई घंटों से इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव की स्थिति नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर हालात फिलहाल सामान्य बने हुए हैं। सीज फायर के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तीसरे देश अमेरिका के दखल से विपक्ष नाराज है। यूएस की मध्यस्थता पर विपक्ष के सरकार से सवाल। There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed, that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal
in terms of precision munitions. After he proposed that we cease hostilities, we also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families and we express our solidarity. सीजफायर के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। तीसरे देश अमेरिका के दखल से विपक्ष नाराज है। यूएस की मध्यस्थता पर विपक्ष के सरकार से सवाल। पाकिस्तान पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। कई घंटों से इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव की स्थिति नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर हालात फिलहाल सामान्य बने हुए हैं। बड़ा अपडेट आपको बताने, सीज फायर के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तीसरे देश अमेरिका के दखल से विपक्ष नाराज है। यूएस की मध्यस्थता पर विपक्ष के सरकार से सवाल। पाकिस्तान पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। कई घंटों से इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव की स्थिति नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर हालात फिलहाल सामान्य बने हुए हैं। तो ऐसे में सीज फायर के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। तीसरे देश अमेरिका के दखल से विपक्ष नाराज है। यूएस की मध्यस्थता पर विपक्ष के सरकार से सवाल। पाकिस्तान पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। कई घंटों से इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव की स्थिति नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर हालात फिलहाल सामान्य बने हुए हैं। और ऐसे में सीज फायर के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तीसरे देश अमेरिका के दखल से विपक्ष नाराज है। यूएस की मध्यस्थता पर विपक्ष के सरकार से सवाल। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, सीज फायर के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल चाक चौबंद कर दी गई है और तीसरे देश अमेरिका के दखल से विपक्ष नाराज है। घोषणा हुई थी, इसका औपचारिक ऐलान सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया था।
इसी को लेकर कल विपक्षी पार्टियों ने जो है लगातार केंद्र सरकार से सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार दो देशों के बीच जो तनाव है उसमें कोई तीसरा देश आकर कैसे ये बात कह सकता है कि सीज फायर हो चुका है, और क्या ये जरूरत पड़ी थी कि अमेरिका को आकर जो है दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाना पड़ा। क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका की तरफ से ही जो है पाकिस्तान को फंडिंग दी जाती है ताकि वो हथियार खरीद सके अमेरिका से ही और उन हथियारों को भारत के खिलाफ यूज करे, और वहीं दूसरी ओर अमेरिका खुद आकर ये कहता है कि हम दोनों देशों के बीच शांति चाहते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, इसको लेकर भी सवालिया निशान जो है खड़े किए जा रहे हैं। और कल कांग्रेस नेता सचिन पायलट से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से लेकर समूचे विपक्ष ने जो है अपने अलग अलग नेताओं ने जो है केंद्र सरकार से मांग करी है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और साथ ही साथ एक सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी आए और पूरे विपक्ष को वो विश्वास में ले कि अभी जो सीज फायर की स्थिति है वो किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के आपसी जो है समन्वय से हुई है। क्योंकि कल पिछले परसों हमने देखा था जब सीज फायर की घोषणा हुई थी उसके महज 3 घंटे बाद ही जो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया था। तो उसी को लेकर भी जो है काफी गंभीर सवाल पाकिस्तान की उस पे भरोसे पर भी किए जा रहे हैं, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान किया, एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। कश्मीर का मुद्दा उन्होंने जो है उसका जिक्र किया, यहाँ तक कि उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को हजारों साल पुराना बता दिया, जबकि ये मुद्दा केवल जो है 70-75 साल पुराना ही है। तो इसीलिए काफी सवाल जो है अमेरिका पर खड़े किए जा रहे हैं, और ये विपक्ष का सवाल जो है सीधे तौर पर केंद्र सरकार से है कि एक तीसरा देश कैसे जो है दो देशों के बीच की मध्यस्थता को बता सकता है। जी बिल्कुल विशाल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।